Good evening, everyone. Welcome to today's session. Today, we are going to discuss a very important topic, which is the role of micronutrients. I'm your host, Ruchita Singh, and we are joining here to hear from our experts who've been to this journey of understanding how do we actually bridge the nutritional gap and how do we use rainbow colors in our food plate to actually benefit us. It is my honor and privilege to invite Farooq Darapur to start the session. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, two-time world champion in sailing, and has had an active sporting career of 40 plus years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. He's a flag bearer on this journey with the mission, Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine Free. Let's listen from him, guys. Thank you, Ruchita, and good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. I've often said on this group that if you give the body the right amount of nutrition and right amount of exercise, not too much and not too little, you'd have found the safest way to health. As far as nutrition is concerned, I'm going to give you 3 tips today. The first tip is try and get the food from the farm, the minute it's plucked from the farm, to your plate in the shortest possible time. Shorter the time, greater the nutrition. Longer the duration of the food reaching from the farm to your plate, there is a massive nutritional loss. So get it as quickly as possible from the farm to your plate and you'll get the best amount of nutrition. The second tip today is that try and get foods which are non-genetically modified. This, in today's day and age, is a bit difficult to get, but at least be conscious about the fact that genetically modified food has got less nutrition than non-genetically modified food. And the third tip for the day is try and cook all your meals on the slowest possible flame, on the dimmest possible flame, because higher the flame, there's a loss of nutrition. Slower the flame, the better the nutrition. So today, you're going to be hearing from somebody who has made a huge transformation. Okay, he's lost some amazing amount, not just the weight, but the way he changed his whole holistic health around. And he could only do that after he understood what nutrition is all about. So I really urge you to listen to Manoj very carefully, because what he has to say will have a significant impact on not only your health, but the health of your whole family. So over to Manoj. Thank you very much, Farooq. Thanks a lot. And whatever you said about me, just because of you. Otherwise, I was talking to somebody today, the power of association. And exactly, I gave my example because he knew me how I was before, 120 kg once upon a time. तो बोलने का मतलब ये है कि फारूक जो हमारे टीम पे है, वी आर लकी फॉर दैट. एटलीस्ट आई कैन से फॉर माई सेल्फ कि मेरे लाइफ में अगर कोई एक चीज मिरेकल हुए तो फारूक आए हैं. एंड सेम चीज बाकियों के लिए भी हो सकता है अगर इफ दे वांट टू, है कि नहीं. सो नाउ कमिंग टू दी आज के प्रेजेंटेशन में, या तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रेनबो कनेक्शन. इसके साथ में हम एक और चीज देखेंगे कि कब खाना चाहिए, है ना, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. व्हाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई इन द मॉर्निंग. तो बेसिकली सबसे पहले ये समझ लें कि व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड. वन इज माइक्रो, सेकंड इज न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो मतलब स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटा, स्मॉल इन साइज और क्वांटिटी. ओके, तो देयर आर 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. बेसिकली 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम खाते हैं. अगर मैं थोड़ा रिफ्रेश कर दूं आपको, वन इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स एंड फैट. तो इसमें से जो विटामिन और मिनरल्स है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं. हम इसे बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं, इतनी कम क्वांटिटी कि शायद अगर आप किसी एक को अगर आप देखने की कोशिश करो तो शायद आपको दिखे भी नहीं, आप उसको उठा भी नहीं पाओ. विटामिन
दो टाइप के होते हैं विटामिन, वन इज फैट सोल्यूबल विटामिन, सेकंड इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, और मिनरल्स जो इनसोल्यूबल होते हैं, जो घुलते नहीं हैं। हम इसके बारे में थोड़ा और आगे जानकारी देंगे आपको। नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच कंट्रोल बॉडीली फंक्शन। मतलब ये कि हमारे बॉडी में जो भी हम काम करते हैं उसको अच्छी तरह से करने के लिए ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, तलवार, द सॉर्ड, और तलवार की धार, है ना, तो उसके काम करने की क्षमता। एक तो हमारी बॉडी है, लेकिन उसको किस तरह से एफिशिएंटली वो काम करे, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन एंड मिनरल्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? जैसे कि हमने बताया कि दो टाइप के विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन में जैसे B1, B2, B6, B12, नियासिन, फॉलिक एसिड, बायोटीन, विटामिन सी वगैरह वगैरह, ये आते हैं वाटर सोल्यूबल में। वाटर सोल्यूबल बेसिकली पानी में घुल जाते हैं। ओके, क्योंकि वो पानी में घुल जाते हैं तो उसे हम अगर ज़्यादा खा लें किसी दिन, तो दूसरे दिन वो फ्लश आउट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जो भी एक्सेस क्वांटिटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर आपने ज़्यादा खाया तो ये नहीं सोचना है कि हमने कल नहीं खाना है क्योंकि आज ज़्यादा खा लिया। नहीं, आज ज़्यादा खा लिया कोई बात नहीं है, आपको कल भी खाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये बॉडी में रहता नहीं है तो इसका कोई रिस्क नहीं होता ओवरडोजिंग का, और इसे हमें रोज खाना होता है, जिससे जैसे कि मैं आपको बताया है ना, तो इट मस्ट बी कंसिस्टेंटली। अब अब आप बोलोगे कि हमें कितना खाना चाहिए ताकि ओवरडोजिंग ना हो। कई न्यूट्रिएंट्स तो ऐसे हैं जिसके बारे में आज तक पता नहीं चला है कि आपको कितना खाना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल इज विटामिन सी, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि विटामिन सी में तो आज तक किसी को पता नहीं है कि कितना खाना चाहिए। इफ़ यू गो टू डॉक्टर या फिर लैब में जाइए, आप लैब में जाकर उनको बोलो कि मेरा B12 टेस्ट करके बताओ, अंदर मेरे बॉडी में B12 कितना है, वो आपको टेस्ट करके बता देंगे। आप उनको बोलो मुझे D3 पता करके बताओ कितना है, आयरन बराबर है कि नहीं बताओ, दे विल टेल यू। लेकिन अगर आप उसके बाद जाइए और उनको पूछिए कि मेरे को विटामिन सी चेक करना है, क्या ये बराबर है या नहीं है मेरे बॉडी के अंदर, जितना चाहिए उतना है कि नहीं, तो देयर इज नो टेस्ट, सो यू कैन नॉट मेक आउट। तो एटलीस्ट थैंक गॉड हमें पता है कि वाटर सोल्यूबल है, ज़्यादा खा लेगा तो कोई इशू नहीं है, ये वाटर सोल्यूबल है, बाहर निकल जाएगा। एंड सेकंड इज फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल बेसिकली वो विटामिन है जो पानी में घुलते नहीं है, तो ये पानी से बॉडी से बाहर जाते नहीं है, ये बॉडी में रह जाते हैं। अगर आपने आज ज़्यादा खाया तो फैट में स्टोर होके रह जाते हैं। नेक्स्ट डे अगर आप नहीं खाओगे तो आप उसको फैट उसमें थोड़ा रिलीज कर देता है ना, यूज़ करने के लिए। बेस्ट एग्जांपल है विटामिन D3 का। अगर कई लोगों ने देखा होगा, अगर बाहर से D3 खाई होगी आपने, डॉक्टर का लिखा हुआ, या इंजेक्शन लिया होगा, तो आपको हफ्ते में एक बार देते हैं। कोई टैबलेट होगी तो हफ्ते में एक बार दे देंगे, या तो महीने में एक बार दे देंगे। इंजेक्शन होगा तो महीने में एक बार दे देंगे, है ना, क्योंकि वो आपको एक साथ दे देते हैं पूरे महीने की क्वांटिटी या फिर हफ्ते की क्वांटिटी, वो बाहर नहीं निकलेगा फ्लश आउट होकर। तो ये कौन से विटामिन है? बेसिकली शॉर्टकट में अगर आप समझ पढ़ने याद रखने जाए तो डैक है, दैट इज विटामिन D, A, K एंड E, है ना। ये वो विटामिन है। इसका एक रिस्क है कि इसमें ओवरडोजिंग हो सकता है, क्योंकि हम ज़्यादा खा लें, क्योंकि वो बॉडी में रह जाता है, इसलिए। सो सबसे बेस्ट होगा कि जितनी क्वांटिटी आप कम खाओ या एवरी डे के हिसाब से खा लो, तो दैट इज द बेस्ट। हाँ, सो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो व्हाट आर मिनरल्स? सो मिनरल्स आर दोज एलिमेंट्स ऑन द अर्थ एंड इन फूड्स दैट आवर बॉडी नीड्स टू डेवलप एंड फंक्शन फॉर्मली। इसका मतलब ये कि मिनरल्स भी हमारे बॉडी को डेवलप करने के लिए और उनको फंक्शन करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए काम आते हैं। ये क्या क्या है? जैसे कि जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है ना, पोटेशियम है। ये सारी चीज़ें हैं जो अपने बॉडी को जरूरत पड़ती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी ये विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपने आपके बॉडी को अगर आपने अच्छा न्यूट्रिएंट्स दिया, अच्छे तरह से आपने मिनरल्स और विटामिन दिए, तो फायदा क्या होगा आपको? फायदा ये होगा कि DNA का सिंथेसिस अच्छी तरह से होगा, है ना, और आपकी हार्ट बीट को रेगुलर रेगुलर रखने, मतलब रेगुलराइजेशन करने में मदद करता है। ये मिनरल से फायदे हैं।
आपके बोन बनाने में काम आता है। आपको पता है कैल्शियम से आपके बोन बनते हैं, लेकिन सिर्फ कैल्शियम नहीं, उसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक भी जरूरी है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम आता है। आपको पता होगा हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में है, उसके अंदर आयरन होता है जो आपके ऑक्सीजन को हर एक सेल तक ले जाता है। तो ये मिनरल से काम है। और आपके बॉडी के जो बॉडी फ्लूइड है, अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, इनको भी रेगुलेट करते हैं। तो ये मिनरल से फायदे हैं। और विटामिन के फायदे क्या है आपको पता होगा। अगर आपने विटामिन ए मतलब गाजर अच्छा खाया तो आपकी आंखें अच्छी होंगी। इम्यून फंक्शन आपका अच्छा होगा विटामिन सी, डी, ई से। आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी होगी अगर आपने विटामिन ई खाया तो। आपका नर्व हेल्थ अच्छा होगा, आपके बोन की हेल्थ अच्छी होगी। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी में अच्छे से रहेंगे, तो आपको फ्यूचर में एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आपके बहुत अच्छी तरह से होंगे। तो ये विटामिन के फायदे हैं और ये आपके मिनरल से फायदे हैं। तो क्या चीज क्या फायदे करता है, अगले स्लाइड में अगर आप देखें तो विटामिन ए है जो आपकी आई हेल्थ के लिए अच्छा है। विटामिन डी, विटामिन के, मैग्नीशियम, मैग्नीज और कैल्शियम ये आपके बोन हेल्थ के लिए अच्छे हैं। विटामिन ई आपका स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। विटामिन सी, जिंक ये आपके इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं। विटामिन B1, B2, B6, B12 ये आपके नर्व हेल्थ के लिए अच्छे हैं। आपके बालों के लिए ये बायोटिन अच्छा है। आपके रेड ब्लड सेल के लिए आयरन, कॉपर ये अच्छा है। आपके पैनक्रेटिक हेल्थ के लिए क्रोमियम अच्छा है। आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए मोलिब्डेनम अच्छा है। आपके एनर्जी के लिए B3, B5, फास्फोरस, डाइटरी फूड ये अच्छा है। इसी तरह से आपको हर विटामिन का कुछ ना कुछ एक मेजर फायदा होगा और बाद में सपोर्टिव फायदे भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक विटामिन से एक ही आपको फायदा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। उसके और सपोर्टिव फायदे भी बहुत सारे मिलते हैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर क्या होगा कि अगर आपने अच्छी तरह से विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं खाए, तो नहीं आपके शरीर अपने कंज्यूम नहीं किया तो क्या होगा। जैसे कि आपको बताया था, अगर विटामिन अच्छा खाओगे तो आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, तेज रहेंगी। लेकिन अगर अच्छा नहीं खाया तो ब्लड विजन होगा, धुंधला दिखा जाएगा। आपकी पुअर मेमोरी रहेगी, मतलब याददाश्त थोड़ी कमजोर होती जाएगी। आपके मसल्स में वीकनेस आ सकती है। आप हमेशा कंफ्यूजन के स्टेट में होंगे। ऑब्वियसली जब आपकी पुअर मेमोरी होगी तो आप कंफ्यूजन के स्टेट में ही होंगे। भूख कम लगेगी या इरेगुलर लगेगी। आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको फटीग हो सकता है, आप हमेशा थकान से भरे हुए हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से नहीं कंज्यूम की तो ये सारी तकलीफें आ सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम खाएं कहाँ से। नेक्स्ट स्लाइड। हमें कहाँ से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बहुत सारे फोटो हैं। इन चीज को अगर एक सिंपल स्लाइड में अगर आपको दिखा दिया जाए नोट्स के हिसाब से, तो अगली स्लाइड में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स और आपको कहाँ से मिलते हैं। मैं कुछ पढ़ लूंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख सकते हो अपने पास, इसको याद कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो। जैसा विटामिन ए आपको मिल जाता है लीफी ग्रीन वेजिटेबल से, ऑरेंज से, येलो वेजिटेबल से, टोमेटो से, रेड बेल पेपर से। विटामिन डी आपको मिल जाता है कॉड लिवर ऑयल, सैल्मन, फिश, ऑरेंज जूस वगैरह से। विटामिन ई आपको मिल जाता है व्हीट ग्राम ऑयल से, सनफ्लावर सीड से, सोयाबीन ऑयल से, आलमंड से, पीनट बटर से, है ना। विटामिन के आपको मिल जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, इंक्लूडिंग आपको स्पिनच से मिल सकता है, ब्रोकली से मिल सकता है, ब्रुसेल स्प्राउट से मिल सकता है, कैबेज से मिल सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इतना हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद भी पढ़ सकते हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और आपको मिनरल कहाँ से मिलते हैं अगले स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो जैसे कैल्शियम है, ये आपको मिल्क, चीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाता है, जो आपको बोन हेल्थ के लिए बहुत सही है। क्लोराइड ये आपको नमक से मिल सकता है, सेलेरी से मिल सकता है, टोमेटो से मिलता है। और ये आपके बॉडी के फ्लूइड को, जैसे कि हमने बताया था अभी कि मिनरल्स आपके बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए काम आता है और डाइजेशन में मदद करता है। मैग्नीशियम आपको मिल सकता है होल ग्रीन सीरियल से, लेग्यूम से, नट्स से। ये आपके
मसल को कंट्रोल करता है और नर्व फंक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। फॉस्फोरस आपको मिलता है नट, सीड्स, लेग्यूम्स से मिलता है आपको, और ये आपके मेम्ब्रान फंक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोटेशियम आपको मिलता है बनाना, पोटैटो, लेग्यूम से मिलता है, और ये आपके कार्डियक हेल्थ के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फायदेमंद है। सोडियम आपको मिलता है नमक से, चीज, वेजिटेबल जूस, इन सब चीज़ों से, जो आपके इलेक्ट्रॉइड्स के बैलेंस को मेंटेन करता है। तो अगर आप देखेंगे कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो आपको कितनी तकलीफें आ सकती हैं, ये आपको समझना है, और कितनी जरूरी है ये। लेकिन क्या एज ए हिंदुस्तानी हमारे शरीर में हम अच्छी तरह से कंज्यूम कर रहे हैं? जी नहीं। हर 10 में से 8 इंसान हिंदुस्तान के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंट, मतलब वो इतनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं खाते हैं जितना उनके बॉडी को चाहिए। ओके, और उससे भी शॉकिंग तो ये है कि 70% की पॉपुलेशन के पास तो 50% भी नहीं है मिलता उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जितना चाहिए उसके सामने। और अगर आप लेडीज की हालत देखें हिंदुस्तान के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, तो उनकी हालत भी कोई अच्छी नहीं है, उनकी हालत तो और भी ज्यादा खराब है। विटामिन डी में 70 से 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है, लेडीज की बात कर रहा हूँ। आयरन में 50%, कैल्शियम में 41% के आसपास, विटामिन ए में 18% के आसपास, आयोडीन में 14% के आसपास। तो ये है, और इसी से आपको दिखता होगा क्यों लोगों लेडीज में कैल्शियम की कमी है, क्यों वो एनीमिक हैं, क्यों उनको थायराइड की प्रॉब्लम है। ये रीजन है उसके। तो अब उसके लिए हम करें क्या? वैसे भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद नहीं उगा रहे हो। जैसे कि फारूक जी ने कहा था कि जो 3 चीजें उन्होंने बताया, उसमें सबसे पहले चीज उन्होंने बताई थी कि जैसे ही आपने खेत से उसे निकाला, कोई सब्जी को या फ्रूट को, जितना जल्दी हो सके खा लो। बम्बई में कहाँ से हो? ओके, और जल्दी खाने को क्यों कहा गया है? ये चार्ट में देखिए आप, ग्रीन बीन्स अगर आपके प्लेट में आने को, प्लग करने से, खेत से निकालने के बाद 11 से 15 दिन अगर लग जाता है आपके प्लेट में आने तक, बनने के बाद, तो मानिए कि उसके अंदर 45% न्यूट्रिएंट की तो वैसे डेफिशिएंसी हो गई। एक तो वैसे ही आज के खाने में न्यूट्रिएंट उतना नहीं है जितना हुआ करता था। मैंने कहीं पढ़ा था कि आज से 25-30 साल पहले एक पालक की गिट्टी के अंदर जितना आपको विटामिन सी या फिर आयरन मिलता था, उतना ही लेने के लिए आज आपको 3 पालक की गड्डी खानी पड़ी। एक तो वैसे हमारा फूड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गया है, और उसके ऊपर ये प्रॉब्लम कि हम जितना देर करेंगे उतना और रिड्यूस हो जाता है। ब्रोकली और कॉलीफ्लावर अगर 6 से 16 दिन अगर हमको लगता है हमारे प्लेट में आने को, ये एवरेज निकाला गया है, तो उसमें 25% की न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाती है। ग्रीन पीस, मटर 8 से 10 दिन अगर आने को लगता है तो 15%। और हम सोचिए कि हम तो फ्रोजन मटन खा रहे हैं 1-1 साल पुराना, क्या न्यूट्रिएंट होगा उसके अंदर। कैरेट 9 से 10 दिन आने को लगते हैं और उसमें 10% की डिफिशियंसी होती है। तो इनसे बचा कैसे जाए? तो उससे बचाने के कुछ टिप्स यहाँ साइड में लिखे हैं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फूड खा लीजिए। मतलब ये कि जितना जल्दी खेत से निकलता है उतना जल्दी आप खा लीजिए। आप उसमें क्या कर सकते हो, जिस दिन खरीदा उसी दिन खाइए, उसी दिन काटिए, उसी दिन धोइए, है ना। कभी भी अपने खाने को, जो भी आपने सब्जियां खरीदी हैं, फ्रूट खरीदी हैं, उनको खुले में मत रखिए। नहीं तो क्या होगा, उससे उसका जो मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा और वो पिलपिले हो जाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए नरम पड़ जाती हैं सब्जियां, वो नहीं होना चाहिए। उनके अंदर कड़कपन, तरोताजापन रहना चाहिए। खाने से पहले आप उनको अच्छी तरह से धोइए, और पकाने के पहले ही काटिए या खाने के पहले ही काटिए। अगर आप उसको रॉ खा रहे हो सके तो स्किन के साथ में खाना खाइए। स्किन के साथ में खाइए मतलब उसके छिलके मत उतारिए अगर जहाँ तक हो सके। और जितना
जितना जल्दी काटने के बाद जितना जल्दी हो सके बनाइए, और जितना कम से कम पानी का उपयोग कर सको उतना कम से कम पानी का उपयोग करिए, और जितना बना उतना खा लो, ताकि आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़े, ना तो फिर वापस से वही हो जाएगा, है ना, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। नेक्स्ट स्लाइड। ये चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है ना, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे कुछ बना हुआ है, बट बेसिकली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। नो, बैक स्लाइड प्लीज। नहीं, पीछे पीछे जाइए। या यस, इसमें बेसिकली क्या है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पिक्चर एक हिसाब से बना दी है। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा है कौन से हिसाब से, कि सबसे पहले आप खाते हैं तो आपके खाने की नली से जाता है, जो एसोफेगस है सबसे पहले जो लिखा है, उसके बाद स्टमक है जो पेट निकला हुआ है ना, उसके बाद आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत है, और छोटी आंत के 3 अलग अलग पार्ट हैं, और फिर लास्ट में जो है बड़ी आंत है। आप इसमें देखेंगे ध्यान से कि आपके स्टमक में कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, छोटी आंत के पहले हिस्से में कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, फिर छोटी आंत के दूसरे हिस्से में कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, और छोटी आंत के तीसरे हिस्से में कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, और फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं जैसे विटामिन के और बायोटिन, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप खाओ, जो भी विटामिन खाओ, उसने एटलीस्ट उस फॉर्म में वहां तक पहुंचना चाहिए, है ना, नहीं तो हो सकता है उसको उतना अच्छा इफेक्ट आपको न मिले। इमेजिन करिए विटामिन के स्टमक में ही डाइल्यूट हो जाए, और फिर उसकी एफिशिएंसी या फिर एफिकेसी बढ़ घट जाए, तो आपको उतना उसका इफेक्ट नहीं मिले। ये सिर्फ एक जानकारी है आपकी, है ना, अलग अलग विटामिन कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। तो और दूसरी चीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस चीज को याद रखिएगा, जो मैंने बताया अलग अलग जगह पे जो एब्जॉर्ब होते हैं, इसको हम आगे यूज करेंगे। अभी आपके पास चॉइस है, क्योंकि आपको पता चल गया किस चीज में क्या क्या मिलता है। अभी आपको हम बताएंगे कि कितना खाने से आपके एक दिन की जरूरत पूरी होगी। तो अगर एक दिन का विटामिन ए आपको खत्म पूरा करना है, तो आपको 233 स्ट्रॉबेरी खाने पड़ेंगे। अगर एक दिन का विटामिन सी अगर आपको कंप्लीट करना है अपने बॉडी में, तो आपको 16 कप पम्पकिन खाने पड़ेंगे। एक दिन का विटामिन डी अगर आपको पूरा करना है आपके बॉडी में, तो आपको सैल्मन फिश के 7 फिलेट्स खाने पड़ेंगे। अगर आपको विटामिन ई चाहिए, तो आपको 950 ग्राम, 1 किलो के आसपास काजू खाने पड़ेंगे। इसी तरह से बाकी चीजें आप पढ़िए जरा, कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। विटामिन बी 2 के लिए आपको 12 अंडे खाने पड़ेंगे। ये रोज की बात कर रहा हूं मैं, और ये होल एग की बात हो रही है, एग व्हाइट की बात नहीं हो रही है। क्या आप इतना खा सकते हो? बात पैसे की नहीं है, बात आपके पेट के कैपेसिटी की भी है, और बात आपके इसके साथ में आने वाले कैलोरी की भी है, और इतना ज्यादा खाने के बाद जो बाकी तकलीफें आएंगी उसकी भी है। क्या आप खा सकते हैं? नहीं। इसीलिए इसको कहा जाता है ईट हार्ड। आप बड़े बड़े मुश्किल से आप खा पाओगे, तो नहीं खा पाओगे। एक तो तकलीफ वो है कि अलग अलग जगह पे न्यूट्रिएंट्स ने एब्जॉर्ब होना है, और दूसरी तकलीफ ये है कि क्या आप उतना खाना खा पाओगे जितना ये कहा जाता है। तो ये ईट हार्ड वाला सिस्टम है। ईट स्मार्ट वाला सिस्टम ये है कि ऐसी कोई चीज हो जिसके अंदर इन सब चीजों का निचोड़ आपको मिल जाए, और आप उसको खाओ, और आपके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ना आपको इतना ज्यादा खाना पड़े, जो पॉसिबल नहीं हो सकता आज की डेट में, और दूसरी चीज, ऐसी कोई चीज हो वो वहीं पर डाइल्यूट हो जहां पे वो एब्जॉर्ब होने वाली है। तो यहीं पर है हमारा डेली प्लस, एक न्यूट्रीलाइट का मल्टीविटामिन टैबलेट, जिसके अंदर 24 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स हैं, और 4 हर्ब है। ये क्या करते हैं? इम्यूनिटी, एनर्जी, आपके बॉडी को इम्यूनिटी देंगे, एनर्जी देंगे आपको, आपका मेंटल परफॉर्मेंस इनहेंस करेंगे, और आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करेंगे, है कि नहीं? अगर आप इसके दो टैबलेट को ध्यान से देखो, तो इसमें 2 लेयर दिखेंगी आपको, एक ऊपर डार्क लेयर है और एक नीचे है लाइट लेयर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी को बोलते हैं DLDR, ड्यूअल लेयर डिलेड रिलीज। मतलब 2 लेयर है और डिलेड रिलीज है। डिलेड रिलीज मतलब
लेट घुलेगा, है ना, कुछ समय बाद घुलेगा। मतलब ये कि जो नीचे वाला पार्ट है वो वहीं पर जाके घुलेगा जहां पे उसने घुलना है। कहाँ पे घुलना है? छोटी आंत के निचले हिस्से में और बड़ी आंत में, वहां घुलेगा। और बाकी जो डार्क पार्ट है वो आपका स्टमक में घुल जाएगा। तो जहां जो चाहिए वहां उसको मिल जाएगा। जो न्यूट्रिएंट्स जहां जाना चाहिए वहीं पर, जहां एब्जॉर्ब होगा वहीं पर डाइल्यूट होगा वो। तो ये इस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। और बाकी तो आपको बता दिया इसका सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आपको 100% डेली रिकमेंडेड डाइटरी का जो चार्ट है वो हिसाब से इसके अंदर पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये बात ये आ जाती है कि आपको पता तो चल गया क्या खाना है, स्मार्ट तरीके से कैसे खाना है ना। अब बात ये भी आती है कि कब खाना है, आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये बता दिए। अब आ जाता है कब खाना है। तो ऑब्वियसली आप इतने महीनों से या पिछले 7-8 एपिसोड में आपने देख लिया होगा कि हमने एक बात करी थी कि आपके खानों को आपने आपके बॉडी क्लॉक के हिसाब से खाना चाहिए। बॉडी क्लॉक मतलब जब आपका डे टाइम, जब सूरज उगा हुआ है, सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक, जब तक तब अगर आपने खा लिया तो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। रात के टाइम पे ना खाएं तो सुबह उठने से चालू करें। अगर आपने फॉलो कर दिया तो फायदा क्या होगा? लेफ्ट साइड देखिए आपका, जैसे कि आपको जो जो हमने फायदे बताए थे न्यूट्रिएंट्स के, वो सारे फायदे आपको मिलेंगे। प्रीवियस स्लाइड पे ये आपके ओवरऑल हेल्थ को और आपके जो डीएनए के जेनेसिस है उसको मेंटेन रखता है। रुचिता, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। आई एम स्टिल देयर, या थैंक यू। और आप लाइट डार्क सर्कल के हिसाब से खाते हो, आप टाइम बेस्ड आपकी ईटिंग होती है। आपके पेट में जो गट माइक्रोबायोटा है वो एकदम बैलेंस में रहने की, बैलेंस में रहते हैं। मतलब जितने टाइप के होने चाहिए उतने होते हैं, जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उतने होते हैं। अच्छे वाले ज़्यादा होते हैं, बुरे वाले कम होते हैं, अगर आपने बॉडी क्लॉक के हिसाब से खाना खाया तो। नहीं खाया तो फिर राइट साइड में देखिए, सबसे पहले तो वो होगा जो बीच के पिक्चर में है ना, जैसा मैं पहले था। मैं अपनी फोटो दिखाऊंगा आपको मैं कैसे था पहले। आपका जेनेटिक अल्टरेशन हो सकता है, आपकी स्लीप रिदम बिगड़ सकती है, आपकी डाइट हेल्दी अनहेल्दी रहेगी, बिकॉज आपको जब तक भूख लगेगी आप कुछ भी खा लोगे, जो हाथ में मिलेगा वो खा लोगे। और जो गट माइक्रोबायोटा है उसका जेनेटिक अल्टरेशन हो सकता है। इसका मतलब ये कुछ बुरे बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और अच्छे कम हो सकते हैं। प्लस अच्छे बैक्टीरिया की जो अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग ब्रीड्स हैं, वो भी कम हो सकते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। और ब्रेकफास्ट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों? वो अगर आप स्लाइड में देखोगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि आपको सुबह सुबह एनर्जी बहुत चाहिए होती है। तो एनर्जी प्रोडक्शन में काम करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को बना के रखेगा। आपका डे में अगर अगर आपने मॉर्निंग मॉर्निंग में अगर अच्छे से काम कर लिया तो आपको किक स्टार्ट अच्छा मिलता है ना। आपके बोन और आई हेल्थ को अच्छा रखता है। ये आपके कंसंट्रेशन और मेमोरी को ठीक रखेगा। आपके स्किन हेल्थ और वेट को मैनेज करेगा। विटामिन और मिनरल्स जो रात भर, आपको पता ही है कि रात को बॉडी रिपेयर मोड में रहती है, तो विटामिन और मिनरल्स कंज्यूम हो जाते हैं और सुबह उनकी डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर। और अगर आपने सुबह खा लिया तो एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है और बॉडी को एडिक्वेट विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। ओके। अब एक आसान सी चीज, यार इतना सब कुछ हम कैसे याद रखें, है ना, कैसे क्या चीज कितना खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, तो इसको कैसे याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसको हम कहते हैं रेनबो कनेक्शन। हाउ कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इम्पैक्ट गट माइक्रोबायोम फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। आपको हम एक आसान तरीके से बता सकते हैं। एक तो आसान तरीका आपको हम बता दिया, डेली प्लस, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते कि आपको सिर्फ गोली खानी, दैट इज सप्लीमेंट। आपका जो मेन फूड है उसमें जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वो है। लेकिन मेन फूड को भी अगर आपने अच्छी तरह से खा लिया तो आपको और फायदा मिलेगा। तो जो अलग अलग कलर हैं वो अलग अलग कलर अलग अलग पिगमेंट से बने हुए हैं। ये जो केमिकल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर है उनके अंदर, उसके वजह से वो कलर आते हैं। सीजनल फ्रूट अगर आप खाओगे तो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर
सीजन के अंदर सबसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि जो अक्टूबर नवंबर में आपको जो एप्पल मिलने वाला था आप मई के महीने में खाओ, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है खाने की। आपको जो सीजन में जो फ्रूट मिल जाए वो खाइए। ओके, और ये फ्रूट्स आपको बहुत सारे अच्छे फाइबर देते हैं, सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर, जो आपके गट माइक्रोबायोटा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप देखेंगे अगली स्लाइड में, तो इसमें कई तरह के आपको कलर वाले सर्कल दिखेंगे, है ना। तो ये अलग अलग कलर के फ्रूट होते हैं। ये कलर के आपने फ्रूट देखे होंगे कोई ना कोई, या सब्जियां देखी होंगी। इन सब का कुछ ना कुछ फायदा है। ओके, बिल्कुल इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करना, स्क्रीनशॉट भी लेना नहीं, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इतने टेक्निकल वर्ड्स हैं इसके अंदर। सिंपल समझ जाइए कि इतने सारे कलर्स के जो फ्रूट और वेजिटेबल हैं वो आपने खाने हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे थोड़ा इजी करके दिया हुआ है कि क्या चीज है, किसके अंदर होती है, उसका फायदा क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते, बट 100 बात की एक बात कि आपको हर कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रोज खाने चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोटे मोटे नीचे 5 कलर आपको दिखते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी से 5 कलर के आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दिन भर में खाने चाहिए, क्योंकि उसके अलग अलग फायदे हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके फायदे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो कॉम्प्लेक्स केमिकल के जो कॉम्बिनेशन है, उसके जो कलर बनते हैं, ये आपको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में फायदा देते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी में हेल्प करते हैं ना। इन दो को अगर आपको समझना है तो इस तरह से समझिए। एंटीऑक्सीडेंट अगर आपने खाते रहे तो आपको कभी एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंपल सेंटेंस है और ये रखना बहुत आसान है। एंटीऑक्सीडेंट आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पेट भर के मिलेगा। ओके, आप उसको खाते रहिए, कम पड़ गया आप वो डेली की गोली खा लीजिए। ओके, और एंटी इन्फ्लेमेटरी जब भी आप खाओगे तो आपको एक पेन किलर खाने की जरूरत नहीं। तो ये दोनों फायदे आपको फ्रूट और वेजिटेबल में मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको अपने करना क्या है ना, ये आसान, ये भी आप याद रख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके प्लान, अपने जो अपना खाने को आप प्लान करिएगा कि आपको कब हर कलर का फ्रूट खाना है, उस तरफ से आप अपनी परचेसिंग करिए। जब भी आपको भूख लगे, स्नैकिंग करने में मदद करिए, मंचिंग करने का मदद मन करे, तो आपको वो टाइम पे चिवड़ा, बिस्किट, खाकरा, फाफड़ा ये सब मत खाइए, फ्रूट्स और वेजिटेबल खा लीजिए। नए नए फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। आप इनको स्मूदी और सलाद बना के भी खा सकते हो। तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, आपकी स्किन ग्लो करेगी। आप मान लीजिए मेरी बात, ये पक्का है कि आपने जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल ज्यादा खाओगे, आप खुद देखोगे कि आपका चेहरा कैसे चमकने दमकने लगता है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। ओके, तो ये तो इसके फायदे हैं, तो क्यों ना खाया जाए। और अगर इतना सब नहीं खा सकते हो तो आपको मैं एक और छोटा टिप देता हूँ। अगली स्लाइड प्लीज। ये है न्यूट्रीलाइट का कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल। एक गोली के अंदर तकरीबन 1 किलो फ्रूट एंड वेजिटेबल के गुण, ये एक सेंटेंस में मैंने आपको समझा कि इसके अंदर 1 किलो फ्रूट एंड वेजिटेबल के गुण एक टैबलेट के अंदर। ओके, आप इसको खाइए, सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, सारे बेनिफिट। ओके, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर एलर्जिक एसिड है जो आपके डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अंदर हेस्पेरिडिन है जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके अंदर ईजीसीजी है जो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके अंदर ल्यूटीन है जो आपके आई हेल्थ के लिए अच्छा है। इस तरह से अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। ओके, एक गोली, सारी तकलीफें दूर। तो हमें करना क्या है, इतना सब सीखने के बाद हमें शाइन करना है। हमें हर दिन, हर नया दिन को एक ग्रेटिट्यूड के साथ स्टार्ट करना है। हमें अपना न्यूट्रिशन खाना है, हमारे इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, हमें उसको विजुअलाइज करना चाहिए,
और टारगेट क्लियर होने चाहिए कि हमें क्या पाना है अच्छे खाना खाने से या फिर आज के दिन से। ओके, रोज कोई ना कोई नई चीज सीखने की कोशिश करनी चाहिए और एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस न्यूट्रिएंट से अगर आप न्यूट्रिशन के अंदर रहोगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, तो उसमें आपको फर्क क्या पड़ता है और फायदा क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मैं हूं नहीं, मैं था, सॉरी, मैं जो हूं मैं भी आपके सामने बैठा हूं, ये मैं था। दिस इज 2015, 120 किलो। और अभी जो मैं हूं दैट इज अराउंड 79 kg। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज अराउंड 40 kg रिडक्शन। मैंने कई लोगों को सुना है ये बोलते हुए कि जब भी हमने वजन कम किया है, वीकनेस आ जाती है, थकान आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विच कम्स विथ वेट रिडक्शन। लेकिन जब वो मुझे पूछते हैं कि मनोज तुम्हें ये सब प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोलता हूँ नहीं, तो वो पूछते हैं कैसे। तो उसका रीजन के लिए मैंने आपको भी पूरा जो प्रेजेंटेशन दिया वो उसका एक रीजन, क्योंकि मैंने अपने न्यूट्रिएंट्स में कमी नहीं होने दी। फरूक जी ने मुझे क्लियर बोला था, बोला मनोज ये जो 5 चीजों का बैलेंस है उसमें से जो कम खा रहे हो उसको बढ़ाओ और जो ज्यादा खा रहे हो उसको कम। और ऑब्वियसली है, मैं प्रोटीन कम खा रहा था, मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कम खा रहा था, मैं फाइबर कम खा रहा था। मैंने ये तीनों चीजें बढ़ाई और बाकी ये 2 चीजें, कार्बोहाइड्रेट और फैट, उसको बहुत कम कर दी। और प्लस एक्सरसाइज, जो कि हमारा साइन का आखिरी पार्ट है ई का। होप आपको मेरे प्रेजेंटेशन से और मेरे पिक्चर से कुछ मोटिवेशन मिला होगा और आप भी शाइन करने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओवर टू यू फरूक। Thank you so much, Manoj. I think you've explained it wonderfully. And I can already see Commander Vadera. You can please unmute yourself and ask your question. Yeah, thank you. Once again, very illuminating talk, as always. I have 2-3 doubts. One is he was saying that when you feel hungry, instead of munching, anything else, you have fruits or vegetables. Okay, so suppose I'm feeling hungry in the evening, but normally fruits are not recommended to be taken in the evening. So can I do that? Number one. He also mentioned about eating vegetables, raw vegetables. So I want to know which all raw vegetables one can have, during the day, so that to avail benefit of its nutrients. So Thank you. the first question, sir, that if you are feeling hungry, basically it should tell you that you haven't had the correct meal prior to that. So if you have the correct meal, then you won't feel hungry. But suppose you still feel hungry, suppose you made an error in the meal. Priorities are as follows: drink water. So most of the time you're not hungry, you're actually thirsty. So drink water. If water is not sorting it out, then you can drink probably coconut water. If that's not sorting it out, you can probably drink a little protein powder in water. That will create enough satiety and it will sort it out. The second question is that this raw, vegetables. I'm a firm believer of carrots, cucumber, beetroot, radish, green leaves, lettuce, icebergs. So all these are extremely good to be eaten as raw. Tomatoes, okay, and they will obviously, because see, when you cook your tomato, you lose more than half the nutrition value out of it. But if you eat a raw tomato, then you get more nutritional value. But mind you, please be very careful because of the amount of pesticides and that are used today. They can be very, very damaging and harmful. So if you're eating anything raw, ensure that you are either cleaning it really well
Okay, there are some really good solutions available that you can use. And if not, if you don't have any of those, at least make sure that you put them through running water over a prolonged period of time to get as much pesticides out. Like, for example, when I eat carrots, I made sure that I don't want to scrape the skin off because the skin has more nutrients in it. But unfortunately, because of the pesticides and the environment that we live in, I scrape off the skin so that the harmful effects of the pesticides are reduced. You still will get some harmful effects from there, but you'll still get massively reduced. So you mean to say amongst the salad, carrot and tomatoes are the best thing to eat any time of the day? Carrots, tomatoes, beetroots, radish, definitely really great choices. Cucumber. Cucumber, normally you have it with a salad. I'm sorry. Yeah. At least carrot and tomatoes, yes, I think that's a good option. Carrots, tomatoes, and beetroot are my top priority. Beetroot. Okay. Beetroot. Okay. So this is amongst the salad. What about the vegetables? Which vegetables I can have? Vegetables, you can go galore, right from your bhendi to your cabbage to your cauliflower, to your pumpkin. No, raw. your I'm bean. talking of raw. No. None of the other vegetables you should be taking really raw. Okay. So now, ठीक है. Carrot, tomatoes are the best choice. Carrots, tomatoes, beetroots, radish. Beetroot, radish, yeah. So that basically the more the colors, better is your nutritional rainbow. Okay. Normally you pick up this cheese, paneer from outside. Is it good? Not a good idea at all. So you make the paneer at home, दूध को फाड़ के. That's a little better, but at least you're controlling the raw material out of it. And again, paneer is something that I was just talking about 2 days ago with somebody. He was using it as a snack. I said, please don't use it as a snack. The best time to eat paneer is, either during morning for breakfast or during lunchtime. Should it be raw or fried or something? Raw paneer. You can. Better, I would say better raw. Raw is a better choice between the two. Better choice. You get more nutrition out of it. As it comes from the market, right? Yeah. Okay, great. If you can just share those slides, which had all this information to be gone through later on, Sure, we can. Thank you. Have a good day. Thank you. And thank you so much, Manoj, for sharing such an amazing presentation, walking us through the importance of micronutrients and how to actually have them in our diets. I do not see any further questions. So thank you, everyone. You've been a great audience. Good night. Stay safe. See you in the next session.